Assalamu alaikum, everybody. Today we shall be chatting with the Governor of Punjab, Chaudhry Sarwar Saab, اور ہم ان سے بات کریں گے اور آپ کے کچھ کنسرنز اور مسائل بھی ڈسکس کریں گے. I hope that everybody can hear me clear and everybody is all right. And hello everyone. Hello. Welcome to Insta Live. And I need to find and add him. Sorry, just bear with me. I'm looking for Governor Saab's Insta to go live. Good to see you all. Hello. Muhammad Sarwar PTI requests. I can't search for some reason. Yeah. Governor Saab ہمارے ساتھ لائیو آنے والے ہیں. I found him and I've added him and we can have a discussion with him. Yes. جی السلام علیکم جی. السلام علیکم. All is well that ends well, علی بھائی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں جی؟ بالکل. looking good and in great spirits. جی ماشاءاللہ things are moving well، آپ کو پتہ ہی ہے بڑے چیلنجنگ ڈیفیکلٹ ٹائمز ہیں، لیکن انشاءاللہ شور کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تھینک یو سو مچ. آئی تھنک اٹس ویری کمینڈیبل کہ آپ نے آ کے اس طرح سوشل میڈیا کے دور میں، آج کل کے دور میں، اس طرح اس پلیٹ فارم پہ آ کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل کیا. آئی تھنک اٹس ویری کمینڈیبل. اینڈ آپ کی جو ایک وائب ہے اور آپ کی پرسنالٹی ویسے بھی آئی تھنک پیپل آر جنرلی فانڈ آف یو. تو ان کے کچھ سوال تھے. تو فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. یو آر ویلکم جی. اور مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں آپ جیسے ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ اور انٹلیکٹ لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں، آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں، اور مور امپورٹنٹلی پبلک کیا کہتی ہے، کیا وہ پوچھنا چاہتے ہیں. اور خاص کر مجھے یہ بڑا احساس ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے جو ہیں طالب علم وہ بہت فکر میں ہیں کہ ان کا سال کہیں ضائع نہ ہو جائے، ان کی تعلیم کا کیا ہوگا، ان کی ڈگری کا کیا ہوگا. تو یہ ایسے سوالات ہیں جو یقینی طور پر ہمارے طلبہ اور طالبات جاننا چاہتے ہیں، اور ہم بھی ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں بالکل اپنے بچوں کی طرح ان کا مستقبل عزیز ہے، اور ان کے لیے جو بھی ممکن ہے. میں کانسٹنٹلی ان ٹچ ہوں ود آل مائی وائس چانسلر، اور ان کو میری بار بار ایک ہی ایڈوائز ہے کہ ہم نے بچوں کا ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ان کا سال جو ہے وہ ضائع نہ ہو. لیکن ابھی چونکہ وائرس ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے، یونیورسٹیز کے بارے میں ہم ابھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کب یونیورسٹیز کھلیں گی. شفقت محمود صاحب نے بھی، جو ہمارے فیڈرل ایجوکیشن منسٹر ہیں، انہوں نے بھی ایک میٹنگ لی تھی، لیکن ابھی تک صوبوں اور مرکز میں کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی کہ یونیورسٹی اور کالجز جو ہیں کب ہم نے کھولنے ہیں. جی بالکل. تھینک یو فار کلیریفائنگ دین. ایکچولی سب سے زیادہ جو میں نے ڈالا اپنے سوشل میڈیا پہ تو سوال ہی آئے تھے اسٹوڈنٹس کے کہ ایک تو وہ جو کہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کیا ہوگا، دیر از سم انسرٹنٹی. تو کیا ہم ان کو اس وقت یہ بتا سکتے ہیں ایز یو سیڈ کہ دا گورنمنٹ از ویری آف دس کنسرن، جو ان کا کنسرن ہے اور اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور جو ان کے لیے بیسٹ ہوگا. ایکچولی شفقت صاحب نے ٹویٹ ڈالی کہ یونیورسٹیز کو دیا گیا ہے، اب ہر یونیورسٹی اپنے طور پہ خود ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. آئی تھنک دیٹس پریٹی ریزنیبل ایکچولی، بیکاز یونیورسٹی کے جو وائس چانسلرز ہوتے ہیں وہ اس حساب سے سچویشن کو گیج کرتے ہیں. What is your personal opinion on that? کیا بہتر؟ I, as the chancellor of all the universities in Punjab, I am going one step further.
एंड ओके। आई एम टेलिंग वाइस चांसलर कि जो भी पॉलिसीज उसने बनानी है उसमें तलबा का हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि उनकी तालीम का जो नुकसान है वो ना हो, और अपना जो एक्शन प्लान है वो मुझे दें ताकि हम फिर उस पे अमल जो है उसको मूव फॉरवर्ड जो है वो कर सकें। ओके सर, गवर्नर साहब मैं दूसरी चीज आपको ये कि मिसाल देता हूँ, मेरे जी। पास बच्चे आए थे मेडिकल कॉलेजेस के जिन्होंने इम्तिहान थे उनके, तो मैंने फौरन जो हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के वाइस चांसलर हैं, मैंने उनसे बात की कि भाई ये टोटल 600 बच्चा है पूरे पंजाब से, तो क्या मुश्किल है इनको एक एक कमरे में बैठा के 10-10 बच्चों की, हर डिवीजन में 10 बच्चे भी नहीं बनते, अगर 15 बन जाएंगे एक मेडिकल कॉलेज में, तो इनको बैठा के इनका इम्तिहान ले लें, क्यों इनका एक साल ज़ाया करते हैं। तो फौरन उस पर उन्होंने एक्शन लिया और पूरी जो है गाइडलाइंस दी कि हाँ यस इम्तिहान जो है लिए जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह हर मुमकिन जो भी होगा, हमारी कोशिश होगी कि बच्चों की तालीम जो है वो हमारे लिए प्रायोरिटी हो, और उनका मुस्तकबिल जो है या उनका एक साल जो है या उनका कोई भी टाइम जो है ज़ाय किए बगैर। आपको मालूम है कि चूंकि अभी यूनिवर्सिटीज जो है वहाँ तलबा और तालबात यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकते, लेकिन ऑनलाइन तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज ने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है, और यूं ही इंशाल्लाह हालात अलाउ करेंगे तो हम यूनिवर्सिटीज जो है उनको खोल देंगे। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या कुछ फीस की भी रियायत रियायत हो सकती है उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टू मेक इट मोर फीजिबल फॉर देखिए देम। इसमें भी जो अभी हमारी कोई यूनिवर्सल जो है वो तो पॉलिसी नहीं है, लेकिन वाइस चांसलर जो है अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज में अपने अपने रिसोर्सेज जो हैं उनको देख के वो फैसले कर सकते हैं कि क्या बेस्ट जो है स्टूडेंट्स के लिए वो कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अली भाई इतनी अनसर्टेनिटी है, अभी कोई पता नहीं है कि कब तक ये मामला जो है कोरोना वायरस का चलेगा, इसलिए मुश्किल फैसले करने में हमें डिफिकल्टीज हैं, चैलेंजेस हैं। लेकिन एक बात हम स्टूडेंट्स को जरूर यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनका जो इंटरेस्ट है वो हमारी अव्वलीन तरजीह जो है वो होगी, और हम ये भी समझते हैं कि स्टूडेंट्स के जो वालिदैन हैं इस हार्डशिप की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से, और कई लोगों के तो जो हैं पेरेंट्स उनके तो बेरोजगार भी हो गए होंगे, तो इन सारी चीजों को इंशाल्लाह मद्देनजर रखते हुए हम जो भी मुमकिन हुआ फैसिलिटेट बच्चों के लिए करें। ठीक है। अच्छा गवर्नर साहब, क्या ये कैसा रहेगा कि अगर एक कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया जाए गवर्नमेंट की, आपकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव उसमें जो भी है बिठा दिया जाए कि स्टूडेंट्स के अगर कोई भी कंसर्न्स आते हैं तो वो अपना ऑनलाइन वहां पे उसको डाल सके, और उसको फिर लाइव, जिस तरह कई इश्यूज होते हैं ना, ट्रबल शूटिंग, और उस पर को बैठे हुए लाइव उनको जवाब दे दिया जाए, उनको नोट डाउन कर लिया जाए कि क्या क्या एग्जैक्टली उनके वो मेरा इश्यूज आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आपने बड़ी जबरदस्त आइडिया दिया है, तो इंशाल्लाह मैं कल ही अपने तमाम जो वाइस चांसलर हैं इंशाल्लाह मेरी तरफ से उनको हदायत चली जाएंगी कि वो एक हेल्पलाइन बनाएं जिसमें बच्चों के जो भी सवालात हैं, जो उनकी रिजर्वेशन हैं, जो इनके इश्यूज हैं, वो उन यूनिवर्सिटीज तक अपना जो है वो भेजें, और यूनिवर्सिटीज इंशाल्लाह उनको इन चीजों का जो है वो जवाब देंगे इंशाल्लाह। इस मसले को बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि दिस इज वेरी यूजफुल सजेशन, जिस पे इंशाल्लाह एक दो दिन में हम इंशाल्लाह अमल करना शुरू करें। दूसरी सर, मेरे दिमाग में जो एक चीज थी वो ये थी सर कि जो उन इलाकों से बच्चे आते हैं जिनके पास रिसोर्स और मीन्स नहीं होते, उनकी स्कॉलरशिप्स के लिए अगर हम क्या कोई ऐसी ऐसी कोई फैसिलिटी या बॉडी बना सकते हैं कि जिस जिस तरह हमने जो कहते हैं ना रिसोर्सफुल लोगों से लेके तो आगे उनमें बांटना, तो उस हवाले से उसको भी मजीद फरोग दिया जाए कि जी वो जो इस पे गरीब। अली भाई इस पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, ठीक है। और बल्कि ये कोरोना वायरस आने से पहले मुझे बड़ा शिद्दत से एहसास था कि बहुत से बच्चे जिनके वालिदैन जो हैं वो फीस देनी अफोर्ड नहीं कर सकते, या कोई ऐसा इशू हो जाता है कि उनकी जॉब जो है वो लूज हो जाती है, या अनफॉर्चुनेट ऐसा मामला आ जाता है कि बच्चे जो हैं बेचारे फीस देने के काबिल नहीं रहते, तो उनके लिए हमें एक हार्डशिप फंड जो है, स्कॉलरशिप फंड जो है वो कायम करना चाहिए। एक तो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में तकरीबन 20 करोड़ के करीब हमने एक फंड जो है वो कायम करने का एक प्लानिंग की थी कि जिसके तहत उन बच्चों को हम जो है हार्डशिप स्कॉलरशिप देंगे।
उसके साथ साथ ही मेरे एक दोस्त हैं इस्लामिक एड के वो चेयरमैन हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि वो एक माशाल्लाह 500 से लेके 1000 बच्चों तक स्कॉलरशिप जो है वो इस्लामिक एड से उनके लिए जो है मुयसर करेंगे और उन बच्चों को दिए जाएंगे। तो अब कोरोना वायरस से तो अब ये जो इशू है और भी मैं समझता हूँ कि जरूरी हो गया है, तो इस पे इंशाल्लाह एक स्कॉलरशिप फंड हम जो है जरूर कायम करेंगे जिसमें बच्चों को इस मुश्किल वक्त में हम मदद करने की पूरी कोशिश करें। तो ये तो प्लान बहुत जो है इस पे मैं काम ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपके एहसास का। आपके एहसास का मैं इसलिए भी खुद गवाह हूँ क्योंकि मेरी वालिदा भी वाइस चांसलर हैं होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की, और वो बताती रहती है कि आपका कंसर्न कितना डीप कंसर्न रहता है उस हवाले से और एजुकेशन बैकग्राउंड से। उसके अलावा आप में एक और चीज़ जो देखने को मिलती है वो है कि जितने भी सोशल फलाही काम है उसमें आप बड़े पेश पेश होते हैं। कोरोना के हवाले से भी जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन और डिफरेंट एनजीओज को फैसिलिटेट करना, उस दिन मेरी आपसे बात हुई और आपने फौरन इमीडिएटली जो है अपनी जितना भी आपसे हो सकता है आप उसको प्रेजेंट कर देते हैं, पेश कर देते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये आई थिंक दैट्स कमेंडेबल। इस हवाले से सर आप बताइए कि कोरोना को लेके एक तो पहले हम पूरी एक अम्ब्रेला की बात कर लेते हैं। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ सवालात हैं लोगों के जहन में, लोग कंफ्यूज बहुत ज्यादा है कि यार ये डेंजरस है कि नहीं है, हमने बाहर जाना है कि नहीं जाना है, लॉकडाउन कितना होगा, क्या होगा। तो इसको जरा क्लैरिफाई कर, अगर आप थोड़ा सा कर दें इन बच्चों एक को। वली मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि आप भी माशाल्लाह इस राशन डिस्ट्रीब्यूशन में और इस मुश्किल वक्त में लोगों की मदद जो है करने की कोशिश जो है कर रहे हैं। और मुझे ये बात बताते हुए आपको बड़ी खुशी है कि जो हमारी पीबीएन के तहत माशाल्लाह जमातें जो काम कर रही हैं, तो अब तक हमने 5 लाख से ज्यादा खानदानों में राशन जो है वो तकसीम कर दिया है। मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह। ये मुखैर अफराद और एनजीओज का एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि कामयाबी है कि उन्होंने घरों माशाल्लाह। तक ये राशन जो है लोगों को पहुंचाया है। और इस रमजान में भी इंशाल्लाह ये एक्टिविटी जो है ये कंटिन्यू रहेगी और लोग बड़ी मुखैर हजरात जो हैं वो राशन भी दे रहे हैं और वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में भी माशाल्लाह करोड़ों के पैसे जो हैं वो जमा जो है वो करवा रहे हैं। जहां तक ताल्लुक है कि ये इशू कब तक रहेगा, लॉकडाउन में नरमी जो आ रही है वो क्यों आ रही है, तो ये मैं बार बार पाकिस्तान के लोगों को ये बात पिछले एक हफ्ते 10 दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो विजन है कि हमें लॉकडाउन में नरमी करनी है, क्योंकि लोग जो है ये ना हो कि कोरोना वायरस से ज्यादा लोग जो है भूख की वजह से मर जाए। तो जब हम लॉकडाउन में नरमी की बात करती है हुकूमत, तो इसका मतलब एक तो ये हरगज नहीं है कि कोरोना वायरस खतरनाक नहीं है या कोरोना वायरस की वबा जो है फैलने में कम हो गई है। तो ये ऐसी कतन जो है बात नहीं है। ये वबा बड़ी डेंजरस है, खतरनाक है और इसने अमेरिका जैसे सुपर पावर को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है। और उनका हेल्थ सिस्टम और हमारा हेल्थ सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। उनकी इन्वेस्टमेंट जो है हमसे कई 100 गुना ज्यादा है। लेकिन जब केस आने शुरू हुए हैं तो उन मुल्कों का बरतानिया जैसे, इटली जैसे और अमेरिका जैसे ममालिक का भी जो हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया। वो इन मरीजों से कोप नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान का निजाम जो है उनके मुकाबले में बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो मेरी इसीलिए मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि लॉकडाउन में नरमी का मकसद ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से आजादाना घूमना फिरना शुरू कर दें और बिल्कुल जो प्रोटोकॉल्स हैं या जो एसओपीज हैं उन पर आप अमल ना करें। इकॉनमी चूंकि हमारी तबाह होने का खतरा है और लोग जो हैं हमारे पास ताजर आते हैं, हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स आते हैं तो बड़े परेशान हैं कि वो अपने बिजनेस उनके तबाह हो गए हैं, वो अपने जो उनके एम्प्लॉइज हैं उनकी तनख्वाह नहीं दे सकते हैं, गैस का बिल नहीं दे सकते हैं, बिजली का बिल नहीं दे सकते हैं, अगर उन्होंने कोई बिल्डिंग किराए पे ली हुआ है तो किराया नहीं दे सकते हैं। तो वो बहुत परेशान है। उनकी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए हमने लीनियंट होने का जो है एसओपीज के तहत फैसला किया है। लेकिन अवाम से मैं समझता हूं कि हम सबको बार बार ये अपील करनी चाहिए कि खुदा के लिए इस बीमारी को, इस मर्ज को, इस वबा को आप जो है सीरियस समझें, संजीदगी से जो हुकूमत की एडवाइस है
कि आप अपने घरों में रहें, अपना हाथ जो है उसको बार बार धोएं, सोशलाइज करने से गरेज करें, सोशल डिस्टेंस जो है वो रखें। और जिस तरीके से उलमाए कराम ने प्रेसिडेंट के साथ और हमारी मौजूदगी में वादा किया था कि वो सोशल डिस्टेंस भी रखेंगे, घर से वुजू करके आएंगे, बहुत सी मसाजिद इस पे अमल कर रही हैं, लेकिन बहुत से लोग इस पे अमल नहीं कर रहे, जिससे बहुत खतरनाक जो कंसिक्वेंसेज हैं हमारे मुल्क के लिए पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लोगों को खतरे की जो घंटी है उसको पता होना चाहिए, और उनको पता होना चाहिए कि ये मर्ज जो है खतरनाक है, और अभी ये मर्ज जो है बड़ी तेजी से फैल रही है, कम नहीं। थैंक यू सो मच, आपने बड़ी अच्छी बात की। अब जितने भी लोग यहाँ पे हैं, ये आप लोग गौर से सुन लीजिए जो उन्होंने कहा है कि ये सीरियस उतना ही है और ये कम नहीं हुई। आप लोग को खुद ये सारे एसओपीज इसका ख्याल रखना है। गवर्नमेंट ने लीनेंसी इसलिए नहीं दी कि ये खत्म हो गया कोरोना और ये सारा कुछ है, वो प्रॉब्लम सस्टेन्स, द प्रॉब्लम रिमेन्स। गवर्नमेंट लीनेंसी देख रही है कि गवर्नमेंट का एक इकोनॉमिक मुआशी साइकिल चलना होता है जिसमें बहुत से लोगों को नुकसान होता है, उनको उनको फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन अगर हम खुद अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले लें कि हमने वो सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, तो चीजें ये बैलेंस गवर्नमेंट स्ट्राइक करने की कोशिश कर रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू टेल द यूथ? बस थैंक यू अली। बस एक आखिरी बात मैं जरूर ये आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स भी इस बारे में सजेशन दें। आपको मालूम होगा कि चंद हफ्ते पहले मैंने ये तमाम यूनिवर्सिटीज के लाहौर की जो हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज, उनके वाइस चांसलर को बुलाया था, और मैंने उनसे कहा था कि मेरा अपना एक सोच है, और ये सोच अरसा दराज से मेरे जहन में है कि कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और हम सब इस बात को मानते हैं कि ये हदायत का दुनिया के लिए जरिया भी है। लेकिन ये एक बदकिस्मती है कि जो कुरान पाक पढ़ाते हैं उनको भी नहीं पता कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको भी नहीं पता होता पर क्या पढ़ रहे हैं। नमाज हम पंजगाना पढ़ते हैं, मतलब मायने नहीं समझते। तो इसके लिए मैंने एक प्रपोजल दी थी कि हम अगर तमाम यूनिवर्सिटीज में अपने स्टूडेंट्स को, तलबा को, तालबात को कुरान पाक मैनी के साथ पढ़ाएं, तो मैं समझता हूँ कि उनकी जिंदगियों में तरबियत का जो है बहुत अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। तो मुझे खुशी है कि तमाम वाइस चांसलर ने 17 वाइस चांसलर थे जिन्होंने यूनानिमसली कहा कि ये बहुत अच्छी तजवीज़ है, हमने इस पर अमल करना है। तो हमने इस कमेटी बनाई है 7 वाइस चांसलर्स की, और जो इसमें हमें तजावीज़ देंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह हम इसी महीने इसको तमाम यूनिवर्सिटीज में इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो इस बारे में अगर किसी दोस्त की कोई सजेशन हो तो वो हमें लिख के भिजवा सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, ताकि हम इसमें लोगों की राय जो है वो ले सकें। मेरी सर इसके बारे में एक छोटी सी सजेशन होगी अगर आप इजाजत दें, वो ये कि जैसे आपको भी पता होगा कि हमारा दीन हमें जो सिखाता है उसमें हकूकुल इबाद का बहुत बड़ा, कहा जाता है हकूकुल अल्लाह माफ कर दिए जाएंगे, हकूकुल इबाद माफ नहीं होंगे। तो जो हमारी सिविक ड्यूटीज हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, इंसान होने के नाते एक दूसरे की तरफ, और उसमें कोई तफरीक ना हो कि कौन किस फेथ से, किस रिलीजन से, कहाँ से आया है, गरीब है, बड़ा है। जैसे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तमाम इंसान आदम की औलाद हैं, और किसी अरबी को अजमी पे, गोरे को काले, यानी कि इक्वालिटी का एक दर्ज दिया। अब ज्यादातर कई दफा एम्फेसिस रहता है जो कि रिचुअल्स होते हैं, और उन रिचुअल्स को भी समझ जा नहीं जाता कि क्या है उसके पीछे जो स्पिरिट होती है, कि ये क्यों बताया जा रहा है, ये इनकी क्यों डायरेक्शन दी गई है। और अगर हम उसके अखज पे आए तो वो यही है कि इंसान आपस में अच्छी तरह रह ले, अपने लिए, इंसान के लिए वो अच्छा होता है, और कम्युनिटी एज एज ह्यूमन बींग्स एक दूसरे की मदद कर सके जितना ज्यादा कर सकते हैं। तो वो जो लेसन है हमारे दीन के, जिसमें इंसानों की मदद करना और क्यों वो चीज़ ज़रूरी है उनको, और मसाजिद को अगर कम्युनिटी सेंटर्स की तरह यूज़ किया जाए इंफॉर्मेशन और नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और वहाँ पे सर मेरे ख्याल में जो वहाँ जो भी दर्स देते हैं ये वो है, उनका एक जिस तरह डिग्री मिलती है ना सर स्कूल या कॉलेज की, वैसे उनकी एक 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 वो होनी चाहिए कि वो क्या उनका टेस्ट था जिसको वो, मतलब who is that person who's teaching the children of the Islamic religious education। और सर जिस तरह मक्का में, मदीना में, वो तो एक दर स्टेट की तरफ से आता है, तो अगर उसको भी एक सिलेबस की तरह देख लिया जाए कि भी हमने ये बच्चों को पढ़ाना है और आपने इन्हीं लाइंस पे उनको ये तरबियत देनी है, ताकि उनमें वो एक हर उसकी पर्सनल वो ना आ जाए, और किसी भी तरह से अनइंटेंशनली लोग
मिसगाइड ना हो जाए। तो वो स्कॉलर्स को बैठ के बिल्कुल ऊपर सतह के जो स्कॉलर्स होते हैं उनको बैठ के एक मुख्तसरन एक सिलेबस डिवाइस करके कि बच्चों को ये चीजें पढ़ानी जरूरी है। इल्म हासिल करना क्यों जरूरी है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा कि चीन भी जाना पड़े तो उसके लिए जाओ। नॉलेज पे जो एम्फोसिस है, इसलिए मुझे आपकी बड़ी अच्छी ये बात लगती है कि आप जो यूनिवर्सिटीज और ये एजुकेशन को लेके जो आप इतनी चीजें कर रहे हैं, आई थिंक हमें अगर आगे फ्यूचर में जाना है तो फ्यूचर में जाने के लिए तो हमें आगे देखना पड़ेगा ना कि यार दुनिया सितारों पे जा रही है, एक कोई मरीख पे जाने का प्लान कर रहे हैं, तो वो साइंस और टेक्नोलॉजी। और आजकल मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि जो आपका टाइम ऑफ है इसके अंदर नॉलेज गेन करने से आपको किसी ने नहीं रोका। नॉलेज और इंफॉर्मेशन इस वक्त आप इंटरनेट जाएं, यूट्यूब पे जाएं, लिखें टेड टॉक्स, स्टडी योर माइंड, स्टडी योर ब्रेन, स्पिरिचुअल साइंसेस, डिफरेंट फेथ्स, इंसानों के इर्तिका, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स, हिस्ट्री ऑफ ऑल रिलीजन्स, ये सारा कुछ तो एक इंक्लूसिव सोसाइटी ताकि बने जिसके अंदर इंटरफेथ हार्मनी हो, सब इकट्ठे प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहना सीख सकें। और जैसे ये कोरोना असर खत्म होता है, मेरी तरफ से मैंने एक स्लोगन स्टार्ट किया था, भाई हाजिर है। तो उसमें मेरी तरफ से आपको या आपके इन आइडियाज को या गवर्नमेंट में इन बच्चों के लिए, यूथ के लिए, फ्यूचर के लिए कभी भी कोई सर्विसेज चाहिए हो तो आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज एजुकेशन के हवाले से। अदरवाइज आई वुड लव टू बी अ पार्ट टू डिवाइस अ सिस्टम जहाँ इनके लिए अच्छा भला हो जाए। क्योंकि मुझे याद है कि हम जब स्कूल में कॉलेज में होते थे तो रटे मार मार, रटे मार मार, तो समझ नहीं आई कि जिंदगी में क्या फायदा हुआ उसका, उस पढ़ाई का आगे। तो वो चीज जो इंसान को जिंदगी जीना सिखाती है, द आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लाइफ, जो उसकी तरफ भी इनको बच्चों को जो है उनके अजहान रोशन किए जाए। इंशाल्लाह, बिल्कुल आई एग्री विद यू, नॉलेज इज पावर। जी नॉलेज जो है उसके सही बंदा आगे बढ़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है कि हकूकल आबाद, मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ कि हकूक अल्लाह जो है उसमें अगर कोताही हो जाए तो अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, माफ करने जी वाला है, रब्बुल आलमीन है। तो लेकिन ये जो हकूकल आबाद हैं इनकी माफी आसान नहीं होनी। तो इसलिए बिल्कुल। जरूरी है कि लोगों को हकूकल आबाद तक इंशाल्लाह जो है सिखाया जाए। तो इंशाल्लाह तमाम हमारे वाइस चांसलर, मुझे बड़े इस बात पे फख्र है कि देर ऑल डूइंग ए ग्रेट जॉब, इसलिए कि उनको मेरिट पे लगाया गया था, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो बहुत जबरदस्त काम कर बिल्कुल ऐसे। और ये मेरिट रहे का मैं खास तौर पे खुद गवाह हूँ इस चीज का कि बिकॉज मैंने अपनी वालिदा को देखा है, आपको तो पता है, मतलब पोस्ट डॉक से पीएचडी, उन्होंने अपनी बॉडी की, कमर की इंजरीज और पैर और दुनिया में ट्रैवल करना और दिन रात पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, और कितनी वो पैशनेट है अभी भी कि अपनी चेंज लेके आ सकी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मेरिटोक्रेसी आई थिंक जिस तरह उसका मेंटेन होना, आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तो सर इंशाल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर टाइम एंड एवरीथिंग दैट यू डूइंग। और ये जैसे ये चीज खत्म होती है, और द टेक अवे फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन सर, मैं लोगों को जो बताता चलूं कि आपने एक हमें प्रॉमिस किया इन बच्चों को, ताकि इनको कि इनके लिए एक हेल्पलाइन सेटअप की जाएगी जिसमें जितने भी इनके इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग जाके जैसे एक ट्रबल शूटिंग होती है, आप लोग लिख सकते हैं कि मेरा ये इशू है, और वहां गवर्नर साहब की तरफ से एक टीम मुयन कर दी जाएगी, मुतय्यन कर दी जाएगी, जो उनको उनके प्रॉब्लम्स लिख भी लिया करे और कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल्स, वाइस चांसलर्स उन तक पहुंचा दिया करे, और उसका एक कंसाइज सोल्यूशन जो है वो उन सब के लिए बनता जाए। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू। यू, थैंक थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। यू। दिस इज ए गुड सजेशन।